Good morning. I think there are a lot of people here. It's such a lovely morning, isn't it? How many of you are happy to be here? So I think good morning हम लोग थोड़ा और अच्छा विश कर सकते हैं. Good morning. Much better. My name is Naresh Rangwani. On behalf of Infinity India Foundation, I like to welcome each one of you. आप सभी लोगों का इस सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत है. सेमिनार शुरू करने से पहले सिर्फ एक दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि आप लोगों को इस सेमिनार के बारे में कितने लोग रेफरेंस के थ्रू आए हैं? How many of you have come through a reference? Anybody who was referred, please come and attend this program. Okay, very few of you. And how many of you have come through Facebook? Wow, practically all the hands, yeah? I think Facebook एक ऐसा book है जो सभी लोग पढ़ते हैं, बच्चे भी, मम्मी डैडी भी, so I think it's the most popular book. And thanks to technology that we are face to face. And just like to know, जब Facebook पे आपने सेमिनार के बारे में पढ़ा, तो आपको इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कितनी टाइम लगी? ईमेल, मोबाइल नंबर एंड योर नेम. हाउ मच टाइम डज इट टेक? About half a minute, 1 minute? Yeah? There are thousands of people who fill the form because they are at the comfort of their home, desktop पे, मोबाइल से. तो 1 मिनट में खाली वो फॉर्म फिल करना is not a big deal. But taking the time out, that too on a Sunday morning, एक 5 से 6 घंटा इन्वेस्ट करने का मतलब है that you guys are very serious, you want to learn something. So how many of you are here to learn something new today? All of you? So I think सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, खुद के लिए. यार ये कोई भी स्टैंडर्ड से, मुंबई के स्टैंडर्ड से जोरदार नहीं है, प्लीज जोरदार तालियां बजाइए खुद के लिए. Yes, much better. I'm sure you'll do better as we go along. कोई मुझे बताएगा कि इस सेमिनार का टॉपिक क्या है, जबकि पीछे लिखा हुआ है. So there is a hint right behind it is written. What is the title of the program? Scientific, काफी लोग पीछे बैठे ना, कोई बात नहीं. Scientific गर्भ संस्कार. इसके बारे में मैंने खुद आज से 2 साल पहले मैंने सुना था. जो इन्फिनिटी की एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर मेगा, उनसे 2 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिला गोवा में. और फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड साइंटिफिक गर्भ संस्कार. Whereas I am a parent, my son is 16 years old. और इतने टाइम तक मुझे पता ही नहीं था कि there is a knowledge called scientific गर्भ संस्कार. When she shared about this, I was very impressed. And जैसे कहा जाता है ना कि prevention is better than cure, मुझे तब लगा कि ये knowledge अगर मुझे बहुत पहले मिल जाती, आज से 10, 12, 15 साल पहले, I could have used that knowledge to raise my son, to maybe be a more better parent, effective parent. तभी से मैंने उनसे कोऑर्डिनेशन करना शुरू किया, क्योंकि पेरेंटिंग जो है एक पर्सनली मेरे लिए एक पैशन है. इस सब्जेक्ट में मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पेरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ ऑल ऑफ यू आर हियर, आज डेफिनेटली संडे मॉर्निंग ट्रैवल करके यहाँ आना है, people are going to be parents or people already parents are going to be parents for the second time. I think there is nothing like, being a parent. How many of you believe that? That's the biggest blessing to be a parent? All of you? 24th November 2001, my son was born. My life changed after that. My entire life revolves around him. He's in US today and doing very well for himself. फिर भी मुझे लगा कि अगर मुझे ये knowledge scientific गर्भ संस्कार की मिल जाती, तो maybe I could have added some more value, in his raising up years. However, all said and done, 1.5-2 साल से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे और मैं यही वेट कर रहा था, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. एंड बीइंग अ मुंबईकर, मुझे लगा ये नॉलेज, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ अ गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड डॉक्टर मेगा से मैं हमेशा ये कहता था कि आप मुंबई कब आने वाले हो, मुंबई कब आने वाले हो. सो आई एम वेरी हैप्पी that today entire team of Infinity India, entire team, you saw the team members. I think we as Mumbaikars, can we give them a big round of applause for them to come here today? All of them. Can we put a big round of applause, please? I'm sure we can do better. Yeah. So I'm very happy that ये एसोसिएशन जो मेरी इनके साथ है 2 साल से, आज फाइनली वो दिन आया है. और एक चीज़ मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये जो 3-4 घंटे जो नॉलेज आपसे शेयर करने वाले हैं, everybody is going to take something very valuable. So are you ready to learn? हमारे प्रोफेसर पारस परमार, पारस भाई को बुलाते हैं. मोस्ट वेलकम पारस भाई, बहुत सारी तालियों के साथ. गुड मॉर्निंग. यस, थैंक यू चांदनी बहन. आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? फाइन. मुझे ऐसा लगा था कि मुंबई के जो लोग हैं वो फिल्मी स्टाइल के ज्यादा होते हैं, तो गीत वीत बजेगा तो हस्बैंड वाइफ थोड़ा मिलजुल के डांस करेंगे. लेकिन ये तो बहुत संस्कार है
ऐसा लग रहा है। हस्बैंड वाइफ भी इतने दूर दूर खड़े हैं जैसे भाई बहन हो। एक और चीज भी बता देता हूं, रिक्वेस्ट किया था कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में आना है, लेकिन अपने अपने, वो भी सबको पता होगा। फाइन, सो बिफोर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो बैठे बैठे करनी है। इसमें से मैथ्स किसको आता है? मैथमेटिक्स, जस्ट रेज योर हैंड एंड स्ट्रेट हैंड। हाफ हैंड मीन्स डाउट, अगर आप आधा हाथ ऊपर करते हैं तो इसका मतलब आप खुद डाउट में है। स्ट्रेट हैंड अगेन, सॉरी, ओ मोस्ट ऑफ, लेकिन काफी लोगों ने पहले से ही हाथ नीचे रखे हुए। जो लोग शायद आर्ट्स के होंगे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया होगा कि मैथ्स में तो अपने हाथ खड़े करने ही नहीं है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को डाउन करते हैं। गिनती किसको आती है? को, यस, व्हाट इज दिस? दिस इज, दिस एंड दिस, ओके फाइन, इतने तक आना चाहिए। व्हेन आई से 1 क्लैप 1, व्हेन आई से 2 क्लैप ट्वाइस, व्हेन आई से 3 क्लैप 3 टाइम्स, व्हेन आई से 4 क्लैप्स, राइट? करेक्ट? पता चल गया सबको? एनी डाउट? नो डाउट? लेट्स सी। 1, ओ दिस इज नॉट, ये बारिश वाली क्लैप हो गई, मतलब टप 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 करके हो रही है। हमें विंटर वाली क्लैप चाहिए जो एक साथ हो, ठीक है? तो जरा हम देखेंगे कि एक साथ हमारी क्लैप हो जाए। रेडी? फिर से शुरू करेंगे, राइट? 1, 2, 3, 4, वेरी नाइस, बट दिस इज वार्म अप। एक्सरसाइज इज नाउ बिगिन। अब मैं यही नंबर्स बोलूंगा, थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, आगे पीछे बोलूंगा, लेकिन आपको वो नंबर पकड़ के क्लैप लगानी है। रेडी? रेडी? वेरी गुड, ओके। 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 3, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक्सरसाइज थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं 1 कहूं तो 2 ताली, 2 कहूं तो 1 ताली, 3 कहूं तो नहीं ताली, 4 कहूं तो 3 ताली। या रिपीट। व्हेन आई से 1 क्लैप ट्वाइस, व्हेन आई से 2 क्लैप 1, व्हेन आई से 3 नो क्लैप, व्हेन आई से 4 3 क्लैप। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? अगेन, व्हेन आई से 1, पहले समझ लेते हैं। ज्यादातर दिक्कत यही आती है कि समझने से पहले ही हमारा काम शुरू हो जाता है और काम खत्म होने के बाद समझ आती है कि ये नहीं करना था। तो जब मैं 1 कहूं तो 2 बार ताली, 2 कहूं तो 3 कहूं तो 4। रेडी? ओके, 1, 2, 3, फाइन, नो इश्यू। अगेन फिर से करते हैं। रेडी? ओके, 1, 2, 1, 4। अब काफी लोगों ने तो ताली लगाना ही छोड़ दिया है। काफी लोग 3 का इंतजार करते हैं, आने दो 3 को, नो प्रॉब्लम। बट हमने ऐसा देखा कि पहली एक्टिविटी की किसी की गलती नहीं थी। ये एक्सरसाइज 3 वजह से करवाई गई है। पहली वजह मैं आपसे पूछ लेता हूं, पहली एक्टिविटी की किसी ने गलती नहीं की, दूसरी एक्टिविटी की उसमें गलतियां हुई, क्यों? कौन बताएगा? मिसमैच। कैसा मिसमैच? सीरियल नंबर, लेकिन मैंने पहले से ही आपको बोल दिया था माइंड कंसेप्ट सेट है। वेरी गुड। जब हमारा माइंड कंसेप्ट सेट होता है, वो सेट माइंड कंसेप्ट के साथ अगर हम करते हैं तो ज्यादातर उसमें हमें दिक्कत आती नहीं है। लेकिन थोड़ा भी अगर माइंड सेट चेंज किया जाए, पैराडाइम्स को शिफ्ट किया जाए, तो ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि इनिशियल लेवल पर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो आज का जो प्रोग्राम है, प्रेगनेंसी का जो माइंडसेट है वो हर एक आदमी का बहुत कॉमन होता है। जैसे शादी कर ली, प्रेगनेंसी इज अ ब्राइट बाय प्रोडक्ट,
शादी के बाई प्रोडक्ट क्या है? प्रेगनेंसी। शादी हो गई तो कंसीव तो हो ही जाएगा, बच्चा तो आ ही जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है उसे हमें चेंज करना। इट्स नॉट बाय चांस प्रेगनेंसी, इट्स बाय चॉइस प्रेगनेंसी। तो ये माइंडसेट चेंज करना है तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। इसकी एक वजह ये थी ताली की एक्सरसाइज करवाने की। दूसरी वजह, हमारे शरीर के पूरे जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, उस सभी के पॉइंट्स अपने पाम पर होते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर शायद आपने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली हो। तो अगर हम ताली बजाते हैं तो उसकी वजह से सारे पॉइंट्स एनर्जाइज हो जाते हैं, तो पूरा बॉडी एनर्जाइज हो जाता है, माइंड रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। योर सेकंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज अवर अहमदाबाद रीजन। अगर मैं यहां पर 1-1.5 घंटा बात करूंगा, उसके बाद अगर आप ताली ना बजाओ तो उससे अच्छा है पहले ही बजवा दी, तो अपना काम हो गया। राइट? फाइन। सो वी आर हियर फॉर गर्भ संस्कार, बट why need of गर्भ संस्कार? This is our first question, right or wrong? Right. What is the need? क्यों गर्भ संस्कार की जरूरत है? तो my question is very simple. इसमें से न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? Who are reading newspaper? Just raise your hand. Very good. कैसे न्यूज आप हर रोज पढ़ते हैं? कैसे न्यूज आते हैं? नेगेटिव्स। मोस्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज मेरे पास भी थोड़ा बहुत है। पीडीएस, आंगनवाड़ी में सबसे अधिक गड़बड़ी, ओ प्यार अंधा होता है, सास को ही ले भागा दामाद। तो ये सभी औरतों से मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर मायके में मत जाइए, क्योंकि लेने के लिए जब आपके हस्बैंड आते हैं ज्यादा तो ऐसा कुछ हो सकता है शायद। ये तो न्यूज़पेपर का है। प्यार में धोखा, सड़क पे ठोका, अरे वाह। फेस देखते ही हवा हो गया फेसबुक की प्यार, क्योंकि प्रेमी निकला बुड्ढा। पति को समोसा लेने भेजकर दुल्हन प्रेमी संग भागी, पत्नी ही निकली फेसबुक फ्रेंड। ये बहुत दिक्कत हो जाती है ना, जब आप एक परिकल्पना करते हो कि मेरी फेसबुक फ्रेंड कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, और वो पिक्स भी ऐसे डालते हैं, तो आपको लगता है वाओ, और उसके बाद पता चले कि ये तो घर की दाल है। पति की डंडे से पिटाई, निर्लज ने नशे में लूटी कुतिया की इज्जत। पत्नियों से परेशान पति बन रहे हैं सन्यासी। ऐसी न्यूज हर रोज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। यस और नो? ये एक सर्वे आया हुआ है, 16 से 18 ईयर के जो बच्चे हैं वो भी जो क्राइम करते हैं तो उसे आप सीरियस क्राइम गिनो। नाउ चिल्ड्रंस आर अपने एज से भी ज्यादा वो मैच्योर होने लगे हैं, ऐसा हमें पता है। यस और नो? यस। देन डॉटर्स आर इनसिक्योर। ऐसा फील करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हर एक आदमी जब उसकी बेटी या उसकी बीवी या उसकी बहन या कोई भी अपने घर से जब आती है, वो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी कारण के लिए, तो हर एक मर्द के दिल में ये चिंता रहती है, दिमाग में एक सोच रहती है कि वो सेफ और सिक्योर घर पे वापस आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? मर्दों, हाँ, मर्दों को हाँ बोलना है पहले तो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज आज के जमाने में हम हर रोज देख रहे हैं, और हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया आज भी जीने के लायक नहीं है। सोचिए, आज से 20 साल बाद जब आपका लड़का या लड़की मैच्योर एज के होंगे, एडल्ट होंगे, क्या ये दुनिया उनके लिए जीने लायक होगी? थिंक। दिस इज वेरी बिग क्वेश्चंस जो हमारे सामने, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई भी क्रांति हमें नहीं दे सकती। शायद हम करप्शन को क्रांति से मिटा दें, शायद स्वच्छता को हम क्रांति से ला दे, लेकिन आने वाला जनरेशन वो बेहतर जनरेशन हो, इसके लिए कोई क्रांति काम नहीं कर सकती। इसके लिए एक ही चीज काम कर सकती है, वो है उत्क्रांति। उत्क्रांति होनी चाहिए, अंदर से बदलाव होना चाहिए। और वो अंदर से बदलाव कैसे होता है? तो मानव गढ़न, हर एक आदमी का घड़तर होता है, हम सबका भी गढ़न हुआ है। यस और नो?
लेकिन कहां हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम नहीं जानते। किस तरह से हमारा गठन होकर हम यहां तक पहुंचे हैं, ये अब तक हमें पता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा वाक्य एक बहुत बड़े गुरु ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सुधार किसमें करो, वृक्ष में अपने आप हो जाएगा। जो भी सुधार अगर हमें करना है, वो बच्चा आ गया, वो बड़ा हो गया, उसके बाद अगर आप उसको समझाओगे कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, उससे अच्छा है ये है कि जो बीज है उसके अगर हम सुधार करेंगे उसके अंदर, तो अपने आप वो सुधार वो बच्चे में हो जाएगा। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। इसीलिए साइंस और साइंस के साथ साथ हमारा एंशिएंट साइंस, मतलब हमारे वेदास, उपनिषद, सभी जो ग्रंथ है, वो लोग यही चीज पुकार कहते हैं कि जो बच्चे का गठन है वो शुरुआत हो जाती है मां के गर्भ से। जब बच्चा मां के पेट में आता है, और उससे पहले जब माता या पिता सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, तब से बच्चे के गठन की शुरुआत होती है। अब माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू, यहां पर प्रेग्नेंट कितने हैं? जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड। जो भी प्रेग्नेंट है उसमें से कितने लोगों ने ये सोच के रखा है या ऐसा सोचा था प्रेगनेंसी के टाइम पर कि मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए? जिसने सोचा हो? 1 2 3 4 5, जस्ट 5। यहां पर करीबन 300 कपल बैठे हुए हैं, उसमें से 5 कपल ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा था कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं? माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें क्या लगता है, भगवान जो करेगा सही करेगा, अच्छा करेगा। यस और नो? तो सभी माता पिता यही सोचते हैं कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, अच्छे के लिए करेगा। इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे संतान चाहिए। इसका मतलब अब हम भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यस और नो? यस। लेकिन अगर आप भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूं, सब्जी लेने कौन जाता है यहां पर? हस्बैंड या वाइफ? अच्छा, वाइफ ही जाती है ज्यादातर। तो पोटैटो वो कितने रुपए किलो मिलते हैं यहां पर? 30, 20 रुपए। 20 रुपए किलो अगर पोटैटो मिल रहे हैं, तो जब लेडीज जाती है लेने के लिए, तो जाकर वो सब्जी वाले से क्या बोलती है? पोटैटो दे दो, ये लो 20 रुपया। क्या बोलेगी? 1 रुपया कम करो। हाँ, क्योंकि अपने यहां क्या है, सस्ता, फिर नमता, फिर मफत मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं, या उधार तो चाहिए ही चाहिए। ये 4 चीजें हमारे ब्लड में है हिंदुस्तानियों के। सस्ता चाहिए, नमता चाहिए, मफत चाहिए और फिर उधार चाहिए। तो पहले तो लेडीज यही बोलेगी कि 20 रुपए भाई बहुत प्राइस है, 18 पे तो वो दे रहा है। और वो सब्जी वाला भी इतना निर्दोष होता है, वो बोलता है ठीक है, वरना ना बोल दे ले ले उधर से, क्यों यहां तक खींची चली आई है। लेकिन वो भी बोलता है ठीक है मैडम रख लो 18 पे रख लो। 18 पे अगर प्राइस फाइनल हो गया, उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे हम? हाँ, सिलेक्शन। वेरी गुड। हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी बगड़ा हुआ, कोई भी नया पोटैटो हमारी टोकरी में ना आ जाए, हमारे पास ना आ जाए, क्योंकि हमें चिंता है एक टाइम की हमारी सब्जी की। यस और नो? एक टाइम की सब्जी भी हमारी अच्छी बने, उसके लिए हम इतने चिंतित हैं कि जो 18 रुपए किलो पोटैटो है, जिसमें करीबन 6 पोटैटो आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, वो 6 में से भी एक भी बिगड़ा हुआ ना आ जाए, इसके है। लेकिन जो बच्चा 80 साल तक हमारे जीवन में रहने वाला है, उसके बारे में हमें चिंता नहीं है, उसका सिलेक्शन हम करते ही नहीं है। और क्या बोलते, भगवान जो देगा अच्छे के लिए देगा। यस और नो? तो अगर भगवान पे इतना भरोसा है, तो पोटैटो वाले को भी बोलो ना, जो देना है दो, क्योंकि भगवान जो देगा वो। आप साड़ी लेने जाते हो तो बोलो जो साड़ी देनी हो दो, क्योंकि भगवान जो देगा वो। क्यों सिलेक्शन करते हैं? हर जगह पर सिलेक्शन है। तो भगवान ने कहा है कि यहां पर भी आपके पास सिलेक्शन है, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो क्या होगा? एक एक्टिविटी बोलता हूं, यहां पर नहीं करनी है, घर पे जाके करनी है। किसी भी स्टेशनरी दुकान वाले के पास चले जाओ और स्टेशनरी दुकान वाले के पास चले जाकर
उसके दुकान पे खड़े रहकर आपको बोलना है सिर्फ इतना ही, पेन दो। क्या दो? पेन। पेन दो, इतना ही बोलना है। कितने रुपए वाली देगा? कम से कम 100 वाली। और कोई आदमी देख के देगा? हाँ, 100 रखी लेकिन इसकी औकात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी ट्राई करना। आप अगर जाकर बोलोगे कि पेन दो और कुछ नहीं बोलना है, तो डिफरेंट डिफरेंट देगा, लेकिन कैसी देगा? सस्ती वाली पेन निकाल कर देगा पहले। लेकिन जब आप बोलोगे कि पार्कर पेन दो, सबसे पहले तो पेन दो, तो हमारे गुजरात में तो ऐसा आता है 2 रुपए वाली निकाल के दे देता है। अभी इंडिया बॉम्बे में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले ही वो 2 रुपए वाली पेन बोलो मतलब 2 रुपए वाली दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि पार्कर पेन दो, तो कितने वाली देगा? 100, 150, 400, 800, 7-7, 8-8 हजार तक की पेन आती है। यस और नो? अब आप भगवान को बोलोगे बच्चा दो, कितने वाला देगा? उसके पास तो कितने सारे हैं। जिसको पैदा करना है बोलेगा चल तेरी बारी आ गई, ऊपर। हाँ, क्योंकि आपने कोई डिमांड ही नहीं रखा है। कैसा चाहिए? आपको बोलना पड़ेगा पार्कर चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। वरना 2 रुपए वाला पेन आ गया तो फिर लिख के फेंक देने का, उसमें रिफिल भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब यू कांट रीप्रोग्राम, उसको आप रीप्रोग्राम भी नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन है, आपको मांगना पड़ता है। शिवाजी के लिए जीजाबाई ने मांगा था। महाराष्ट्र के हैं शिवाजी, हमारे लिए बहुत बड़े इंसान है, महापुरुष है। लेकिन वो महापुरुष इस पृथ्वी पर आए कैसे? उनके जीवन में देखिए, जीजाबाई ने भगवान के सामने ये डिमांड रखी थी कि मुझे ऐसी संतान दीजिए जो संतान इस देश में से मुगलों के राज को खत्म कर सके। तब जाके शिवाजी पैदा होते हैं। अब हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, तो क्या आएगा? 2 रुपए वाला। वेरी सिंपल। मैं एक दूसरी चीज बताता हूं। ये क्या है? नींबू। वेरी गुड, सिंपल, नींबू। अब क्या करना है, मैं यहां से नींबू भेजूंगा, ठीक है? और ये नींबू को आपको प्यार से बोलना है कि नींबू, तू नींबू नहीं है, तू आम है। क्या है? क्या बोलना है? तू आम है, और प्यार से बोलना है, ठीक है? तो कहां से शुरू करेंगे? आप कैच कर लेंगे? यस, वेरी गुड। आप उसको प्यार से, बैठे बैठे खड़े रहने की जरूरत नहीं, प्यार से उसको बोलिए और फिर पास ऑन कीजिए आगे। हाँ, जाने दो आगे, नहीं बोलिए, आप बोलिए, लड़कियों की ज्यादा सुनते हैं। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, सबको पता चले। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो अब इमोशन आ रहे हैं। वेरी गुड। आप उसे किस भी कर सकते हो, नींबू को मुआ, तुम आम हो, ऐसा कर सकते हो आप, डोंट वरी, नींबू उसमें बुरा नहीं मानेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट। वाह, उसके ऊपर प्यार से हाथ वाथ लगाकर। वेरी गुड। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, जो भी। यस, आगे। क्या लग रहा है, ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो? लाइए, अब दे दीजिए। ये नींबू पूरा चक्कर लगाकर नीचे आएगा तो आम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हमारी बात नींबू क्यों सुनेगा? उसे तो अच्छे से अच्छी स्कूल में डालना चाहिए। इस नींबू को हम अच्छे से अच्छी स्कूल, यहां पर कौन सी अच्छी स्कूल है ये एरिया में? जमुनाबाई, इधर ही नजदीक में जमुनाबाई स्कूल में डाल दिया। 12 साल तक इस नींबू को पढ़ाया गया, एक ही सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस। क्या? तू आम है, तू आम है, तू आम है। 12 साल बाद क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि स्कूल में तो अब कहां अच्छा पढ़ाते हैं, ट्यूशंस। इसको ट्यूशंस भी रख दिया, वो भी यही पढ़ाते हैं कि तू आम है, आम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब बोया पेड़ नींबू का, तो आम कहां से आए? आपको आम चाहिए तो क्या बोना था? आम बोना था। अब बो दिया है नींबू, आ गए हैं नींबू, और फिर हम उसको बोलते रहते। बच्चा आने के बाद जब वो पढ़ने जाता है तब, तू होशियार है बेटा,
तू बहुत होशियार है, तू कर सकता है, तेरे में बहुत ताकत है, तू आगे बढ़ सकता है, और वो बोलता है मां मैं नींबू हूं, आम नहीं हूं। समझ में आया? काफी लोग ने तो यहां बैठे बैठे सोच लिया होगा कि हम क्या हैं, और किसी को वाइफ ने बताया होगा आप मत सोचिए, नींबू को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये नींबू आम तब बन सकता है जब आम बोया जाए। हमारी डिमांड रहती है बच्चा आ जाने के बाद उसको बेहतर बनाने की। दिस इज आवर रॉन्ग कंसेप्ट। मेडिकली इस कंसेप्ट को बहुत ही रॉन्ग माना गया है। बच्चे के गढ़न की शुरुआत मां के गर्भ से हो जाती है। जो बोएंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो इसका मतलब है बच्चे के गढ़न की शुरुआत मां के गर्भ से होती है, नहीं कि बच्चा आने के बाद। एक बार नींबू आना शुरू हो गए, फिर आप कितना भी उसको बताओ कि बेटा तू आम है, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, तू आम है, माइंड पावर यूज करके तू आम है, तू आम है, तू आम है, वो पक जाएगा। नींबू अगर कच्चा हो तो पक जाएगा, लेकिन आम नहीं होगा। तो शुरुआत वहां से होती, और इसके प्रमाण हमारे इतिहास में दिए हुए हैं। इतिहास नहीं, मैं आज के प्रमाणों की भी बात करूंगा आपसे, लेकिन शुरुआत करेंगे पुराणों के प्रमाण से। प्रहलाद, आप सोचिए, एक ही इंसान ऐसा है जो राक्षस होने के बावजूद हम अपने बेटे को वो नाम देते हैं प्रहलाद। प्रहलाद बेसिकली क्या था? राक्षस ना, क्योंकि राक्षस के घर में जो पैदा होता है क्या होता है? राक्षस। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है उसके घर में जो पैदा होता है क्या होता है? ब्राह्मण। क्षत्रिय के घर में जो पैदा होता है वो क्षत्रिय। तो राक्षस के घर में जो पैदा होता है वो। लेकिन राक्षस के घर में भी इतना उत्तम भक्त कैसे पैदा हो गया? कैसे? क्योंकि उसकी मां जब प्रेग्नेंट थी कयाधु, तब इंद्र ने सोचा कि अगर ये इसका बाप हिरण्यकश्यप इतना बड़ा खूंखार राक्षस है, इसका बेटा तो कैसा होगा? क्योंकि हम तो बोलते हैं ना कि बाप रे बाप, बेटे तो उससे भी ऊपर होते। बाप अगर ऐसा है तो बेटे तो कैसे होंगे? तो उसने सोचा कि ये कयाधु को ही मार दूं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा पैदा ही नहीं होगा, और पैदा ही नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंद्र ने कयाधु को किडनैप कर लिया। तो किडनैप होने का सिलसिला वहां से शुरू हो रहा है। किडनैप करके सोचा कि इसको अब मार देना है। तभी नारद जी ने पूछा, इंद्र क्या कर रहे हो? बोले इसको मारने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? अरे इसका बेटा तो इसके बाप से भी खूंखार होगा, हम सबको परेशान करेगा। नारद जी कहते हैं कि अगर तुझे इसके बेटे की चिंता है तो वो मुझ पे छोड़ दे, इसका बेटा राक्षस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे? ये तू सोचना छोड़ दे। प्रेग्नेंट लेडी कयाधु को लेकर नारद जी अपने आश्रम में चले जाते हैं, और वहां आश्रम में उसको 9 महीने तक एक ही चीज, भगवान की भक्ति के बारे में उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और कयाधु माता भी इतनी जागृत होकर उसके बारे में सीखती है। तो श्रेष्ठ पुत्र, आप सोचिए, इतिहास के अंदर जब जब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं तो लाखों लोगों के लिए लिए हैं। कभी भगवान एक आदमी के लिए नहीं आए, लेकिन इतिहास में एक ही आदमी के लिए अगर जो भगवान पृथ्वी पर आए हो तो वो प्रहलाद है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिम्हा का रूप लेकर भगवान आए। किसके लिए? प्रहलाद। इतना उत्तम बालक माता प्राप्त कर सकती है। राक्षस के घर में भी उत्तम संतान हो सकते हैं, लेकिन माता को क्या होना पड़ेगा? जागृत। इससे आगे मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। महाभारत किसने पढ़ी है? सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। किसने देखी है? क्योंकि हम हिंदू हैं, ज्यादातर महाभारत पढ़ते नहीं है, देख लेते हैं। तो देखिए, अभिमन्यु का पात्र उसके अंदर आता है। अभिमन्यु को किसने मारा? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, अभिमन्यु को किसने मारा? कर्ण और कोई? कौरव सब मिलके उसकी नींद ने, उसकी मां की नींद ने। यस, तत्वचिंतक ये बताते हैं कि अभिमन्यु के मृत्यु का कारण कर्ण या पांडव नहीं थे, खुद उसकी मां थी। जब कृष्ण भगवान उसकी मां को वो 7 जो चक्रव्यूह थे उसको भेदने की बात बता रहे थे, तब तक तो सुभद्रा जागी हुई थी। लेकिन कैसे उसमें से बाहर निकला जाए ये बात बतानी शुरू की, उससे पहले सुभद्रा सो गई। और सुभद्रा सो गई तो ये ज्ञान अपने बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। तो माता अजागृत,
उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को सोने मत दो। सीधे सीधा लोग मतलब निकालते हैं, अब तेरे को सोना नहीं कल से, ऐसा नहीं है। जागृतता मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूं, अभी भी जो मैं कर रही हूं, सुन रही हूं, बोल रही हूं, देख रही हूं, जो सोच रही हूं, वो सारी चीजें मेरे द्वारा मेरे बेटे तक या बेटी तक पहुंच रहे हैं, मेरे संतान तक पहुंच रहे हैं। ये जागृतता है और ये जागृतता आनी चाहिए। व्यवहारिक प्रमाण है। हमारे यहां सती मदालसा हो गए। सती मदालसा के पहला पुत्र हुआ, उसने सोचा था कि मेरा पुत्र है वो सन्यासी बन जाएगा, बस सन्यासी बन गया। दूसरा पुत्र हुआ, उसने सोचा सन्यासी बन जाए, वो भी सन्यासी बन गया। तीसरा हुआ, उसको भी सोचा सन्यासी होगा, सन्यासी हो गया। उसके पति ने बोला देवी, क्योंकि उसके पति राजा थे, ऋतुध्वज राजा थे बहुत बड़े, कि देवी अगर सभी बच्चे सन्यासी हो गए तो मेरा राज कौन चलाएगा, एक तो राजा दे दो। उसने सोचा, उसने कहा कि अच्छा राजा चाहिए, ठीक है, इस बार जो आएगा वो राजा होगा। और फिर जो संतान आई वो राजा। क्यों? क्योंकि मां जो सोचे वो कर सकती है। अगर वो सोचे कि उसे सन्यासी को पैदा करना है तो वो सन्यासी होगा, और राजा को पैदा करना है तो राजा। गुजराती में हमारे यहां एक कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी, जननी जन तो भक्त जान। मतलब अगर तुझे पैदा करना है तो भक्त को पैदा कर, या दाता या सूर, मतलब दाता को पैदा कर या सूरवीर को पैदा कर, नहींतर रेंजे वांझणी। अदरवाइज बच्चे को पैदा करने की जरूरत नहीं है। मत गुमाना नूर, तू अपना नूर मत गुमा। मतलब भक्त है उसको पैदा किया जा सकता है, सुरवीर है उसको पैदा किया जा सकता है, दानवीर है उसको पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब ये सारे गुण मां के गर्भ से ही बच्चा सीख कर आता है। आने के बाद सुरवीर बनाने के लिए हम उसको कराटे में रखेंगे तो वो सुरवीर नहीं बनेगा। शिवाजी को ब्लैक बेल्ट नहीं आता था, फिर भी सुरवीर थे। तो शूरवीरता का जो गुण है वो मां के गर्भ से लेकर बच्चा पैदा होता है। दानवीरता का जो गुण है वो मां के गर्भ से बच्चा पैदा होता है लेकर। जो ज्ञानियों का गुण है, ज्ञानी होना, वो मां के गर्भ से। देखिए विवेकानंद मां के गर्भ से ही वो ज्ञान लेकर पैदा हुए हैं, उनको जो संस्कार मिले। आप सोचिए, शिकागो के अंदर धर्म परिषद, और धर्म परिषद के बाद स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं, रास्ते में एक अंग्रेज लेडी उनको मिल गई और वो लेडी ने उनको ओपनली एक डिमांड रख दी। क्या डिमांड रखी? आई वॉन्ट अ चाइल्ड लाइक यू। दिस इज वेरी ओपन डिमांड। आप समझ सकते हैं ना, मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें संबंध रखना चाहिए और मेरा जो बच्चा हो उसमें तुम्हारे जैसे गुण आए। अगर आज के जमाने में आप सोचिए, लेडीज इतनी अनसेफ है, अगर डिमांड रख दे कोई लेडीज तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसे कहा कि व्हाई लाइक मी नॉट, मां आज से मैं ही तेरा बेटा, तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। दिस इज इट। ये चीज है जो मां के गर्भ से बच्चा पैदा होकर निकलता है। ये चीज है कि जो कभी भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है कि यहां के जो संस्कार है वो संस्कार वो मां के गर्भ से बच्चा लेकर आता है।